Good morning, students. Welcome back to Management Science class. Today we will be discussing game theory. Well, what is game theory? Game theory is basically a body of knowledge which is concerned with decision making. So it will help us in making decisions in certain situations. What kind of situations? Situations which involves two or more rational opponents, which means there will be either two or more than two players, or you can say competitors, who are rational. Rational means after considering all the information they will behave rationally in the sense that they will go for a decision which is best for them, a decision which will either help them in maximizing the profit or minimizing their loss. So such competitors who are rational and who are competing with each other and have conflicting interest means that both of them wants to win, so both have a conflicting interest. Both wants to earn the profit, to maximize their shareholders wealth. Now it may not be possible in a particular given market conditions, तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं. सो बोथ हैव कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, कंपीटिंग विद ईच अदर, एंड दे आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ अदर डिसीजन मेकिंग यूनिट्स. यानी कि वो सिर्फ अपना ही डिसीजन ले सकते हैं, दूसरे प्लेयर के डिसीजंस पर उनका किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ दो या दो से ज़्यादा रैशनल ओपोनेंट्स या प्लेयर्स compete कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में जो बॉडी ऑफ नॉलेज हमें डिसीजंस लेने में हेल्प करती है, तो दैट थ्योरी इज़ कॉल्ड गेम थ्योरी. इस थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इज़ टू डिटरमिन द रूल्स ऑफ रैशनल बिहेवियर. मीन्स हाउ टू बिहेव रैशनली इन द गेम सिचुएशंस. कि कोई भी गेम की जो सिचुएशन है, जो कंपटीशन है, उसमें किस तरह से रैशनली बिहेव करना है, किस तरह से डिसीजन लेना है. ये जो गेम सिचुएशंस हैं, इसमें आउटकम्स दे आर डिपेंडेंट ऑन द एक्शंस ऑफ द इंटरडिपेंडेंट प्लेयर्स. दैट मीन्स जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो दो प्लेयर हैं या दो से ज़्यादा प्लेयर हैं, दे आर इंटरडिपेंडेंट. इंटरडिपेंडेंट का क्या मतलब है? दैट द डिसीजंस टेकन बाय देम और द स्ट्रैटेजी दे प्ले और द मूव दे मेक, दे आर डिपेंडेंट. आप जब भी कोई गेम खेलते हैं, फॉर एग्जांपल बैडमिंटन प्ले कर रहे हैं और यू आर प्लेइंग चेस, सो योर मूव डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रैटेजीज प्लेड बाय द अदर प्लेयर, राइट. जिस तरह का मूव सेकंड प्लेयर का होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप फिर अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करते हैं, अपना मूव प्लान करते हैं. सो योर डिसीजन is dependent upon the decision or strategies played by the other player. तो इस तरह के situations में, गेम situations में, जहाँ outcomes dependent हैं दूसरे के actions पे, ऐसी जगह हम किस तरह से rationally behave करें, तो this theory will give us certain rules. So we come to a definition of game. What is meant by game? Game refers to a situation in which two or more players are competing. At least there has to be two players, otherwise there will be no game. Then another term is strategy. Strategy का क्या मतलब है? It refers to the action taken by a player in various situations that occur during playing a game. कोई भी गेम जब हम प्ले कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं. लाइक फॉर एग्जांपल डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस, व्हेन दे वांट टू एक्सपैंड देयर बिजनेस, व्हेन दे वांट टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट. ओके, तो कॉम्पिटिटर्स फेस डिफरेंट सिचुएशन ड्यूरिंग अ कॉम्पिटिटिव गेम व्हेन दे आर competing with the other competitors in the market. So what action they are taking, that action is known as
their strategy. Another term that we use in game theory is payoff. So depending upon the strategy played by the player, there are certain results, or you can say outcomes. Those outcomes are called payoffs. So the strategies made by the players, played by the players, the outcomes or the results of those strategies is known as payoffs. These payoffs can be positive in the form of profits, and these payoffs may be negative also when the player played a bad strategy and incurred a loss. So negative payoff can also be there. We try to find the optimal strategy in a game theory. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है गेम थ्योरी में कि हम प्लेयर के लिए एक ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करके दें. ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या होती है? एन ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स द बेस्ट सिचुएशन इन द गेम. गेम में क्या बेस्ट सिचुएशन है प्लेयर के लिए जिसमें उसको मैक्सिमम पे ऑफ मिल सके, राइट? क्योंकि कोई भी प्लेयर लूज़ करना तो नहीं चाहेगा, ना ही किसी तरह के लॉसेस चाहता है. तो ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या होगी कि दोनों ही प्लेयर्स को एक ऐसी सिचुएशन में लेके आना जहाँ पर उन दोनों के लिए ही मैक्सिमम पे ऑफ दे सके. सो दैट स्ट्रैटेजी विच प्रोवाइड्स द बेस्ट सिचुएशन इन द गेम विच इन्वॉल्व्स मैक्सिमम पे ऑफ टू द प्लेयर्स. दोनों ही प्लेयर्स के लिए वही सिचुएशन बेस्ट है. ऐसी स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी बोलते हैं. नाउ वी डिस्कस द मॉडल्स, गेम मॉडल्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स विच आर अवेलेबल डिपेंडिंग अपॉन certain factors. Now first is two person and or n person game. So depending upon the number of players who are playing the game can be a 2-person model or n person model. Then second basis is zero sum or constant sum game or non-zero sum game. Zero sum means or constant sum, both means the same thing. It means that profit of one player is the loss of another player and the total of profit and loss is zero. For example, there is a market. Let's suppose this is a market with 100% market share and there are two players A and B. Both are having 50-50 market share, A as well as B. Now because of some strategy played by A, the market share of A increased to 10% more and it became 60. So it will get reduced to 40. So a positive payoff to 10 and a negative payoff to B, positive payoff of 10 to A and a negative payoff of 10 to B results in zero sum. So this is called zero sum game. And that there can be non-zero sum game also, like where both are having positive results, means both are having profits. So in that case there will be a non-zero sum game. Another kind is finite and infinite games. Finite games are those games where the number of strategies played by the player are available to both the players. An infinite game means where number of strategies are infinite. So the game model that we will be discussing is a 2-person zero sum game which involves finite strategy. It means that we will have only 2 players and there will be a zero sum game. Zero sum means profit of one will be loss of the other and there will be only countable number of strategies involved in the game. Now how does a typical game matrix look like? It looks like this. See, we have 2 players A and B.
Here I have written A strategy and these are B strategies. A has only 3 strategies in this particular example. B also have 3 strategies, and these values, they are called payoffs. 12, 6, minus 10. A negative 10 means loss. Now only 3 strategies are shown here. It doesn't mean that it will be always like this, that number of rows should be equal to number of columns. Not necessarily. There can be 2 rows and 3 columns, 4 columns. So ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जितनी strategies A की हों उतनी ही B की भी होंगी. B can have any number of strategies but they are finite. ये 3x3 मैट्रिक्स है. 2x2 भी हो सकता है, 4x3 भी हो सकता है, 3x4, any kind of matrix can be there. This matrix is based on A's point of view. क्या मतलब है इस बात का कि ये जो पे ऑफ्स है A के पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए हैं. +12 मीन्स प्रॉफिट टू A and a value of -8 means loss to A. So positive values are positive payoffs for A, while negative values, they are loss for A. On the other hand, B के लिए opposite हो जाएगा. A positive value means loss for B, while a negative value is positive for B. Why? Because this is a zero sum game. अगर A को 12 पॉइंट्स का फ़ायदा हो रहा है तो दैट मीन्स B को 12 पॉइंट से नुकसान हो रहा है. अगर A को -8 पॉइंट मिल रहे हैं, दैट मीन्स नेगेटिव पॉइंट मिल रहे हैं, तो B को पॉजिटिव पॉइंट्स मिल रहे हैं. तो क्योंकि ये A के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो यहाँ पे नेगेटिव विल शो लॉस फॉर A एंड पॉजिटिव विल शो गेन फॉर A. Now we have to find the optimal strategy and value of the game. This is what we have to calculate. So how to go about it? How to solve the game? There are different methods. The first method that I am showing today in this video is saddle point method. Now what does this 12 shows? 12 shows that if A chooses A1 and B chooses strategy B1, then there will be a profit of 12 to A. तो A जो है इन सब में सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी उसके लिए क्या है कि वो A1 चले और B जो है उसके बाद B1 स्ट्रैटेजी चूज़ कर ले. तो A के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी में है. But I told you that they are rational players and they know all the strategies and all the payoffs. तो B को भी ये मैट्रिक्स के बारे में मालूम है और A को भी ये मैट्रिक्स के बारे में मालूम है. उसको सारे payoffs मालूम है. उसको ये पता है कि A क्या स्ट्रैटेजी चल सकता है, B की क्या स्ट्रैटेजी है वो A को पता है. तो जब ये सारी चीज़ें मालूम है तो A अगर A1 चलेगा, then he knows that what will B play, what is the best move for B. B will choose B2, right? जैसे ही A ने A1 स्ट्रैटेजी चूज़ करी, B जो है इंस्टेड ऑफ चूजिंग B1 ही विल चूज़ B2 क्योंकि उसमें उसको फ़ायदा है -8 पॉइंट. एंड दिस थिंग इज़ नोन टू A. सिमिलरली जैसे ही वो A2 स्ट्रैटेजी चूज़ करने की सोचता है तो वो साइमल्टेनियसली ये भी सोचेगा कि B कौन सी स्ट्रैटेजी प्ले करेगा. इफ़ A चूजेज़ A2, B विल चूज़ B3. वाई B3? क्योंकि इसमें उसको सबसे कम लॉस है. इफ़ A चूजेज़ A3, B विल चूज़ B1, राइट. -10 का फ़ायदा B को हो जाएगा 10 पॉइंट्स से. तो A किस तरह की स्ट्रैटेजी प्ले करे
उसको मालूम है कि वो जो भी स्ट्रैटेजी प्ले करेगा, बी विल ट्राई टू मिनिमाइज द प्रॉफिट ऑफ ए। चाहे ए कोई भी मूव करे, बी अपनी स्ट्रैटेजी इस हिसाब से चूज़ करेगा जिसमें ए को सबसे कम फ़ायदा हो। तो वही चीज़ ए बी पहले से ही डिसाइड कर लेगा that if A chooses A1, B will choose B2, and what A will get is -8. If A chooses A2, B will choose B3 and B will get 0.3. If A chooses A3, B will choose B1 and the point that A gets is -10. So out of the minimum payoffs, A will try to maximize its profit, and the maximum of these three values is 3. This strategy is called Maximin strategy. So A plays Maximin strategy. Maximin का मतलब है out of minimum values choosing the maximum. So what we write here is, we write row minima. Out of every rows we write the minimum values. In this row minimum value is -8, in this row minimum value is 3, and in this row minimum value is -10. And out of these three minimum values we choose the maximum one. Maximum is 3, we choose this one. Now we move to B. This is how A chooses. A has chosen A2 strategy कि उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि A2 चूज़ करे. अब A2 चूज़ कर लिया, B is free to choose anything, right? Now we will go to B. अभी उसको पता नहीं है A ने क्या चूज़ करना है, बट बी अपनी ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी चूज़ करना चाहता है, बेस्ट स्ट्रैटेजी. तो वो इन तीनों में से डिसाइड करेगा तो कौन सी डिसीजन वो लेगा. इफ़ बी चूजेस B1, वो तो B1 चूज़ करना चाहता है इन द होप दैट A चूजेस A3, क्योंकि उसमें उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा है -10 पॉइंट का, है राइट. बट बी को मालूम है कि जैसे ही वो B1 चूज़ करेगा A विल चूज़ A1 और उसको 12 पॉइंट्स का लॉस हो जाएगा. इफ़ द B चूजेस B2, A विल चूज़ A2, क्योंकि फिर A को 7 पॉइंट्स का फ़ायदा होता है. इफ़ B चूजेस B2 इन द होप दैट A चूजेस A1, ताकि उसको -8 पॉइंट का फ़ायदा हो. बट होता क्या है, इफ़ B चूजेस B2 it may be possible A chooses A2 and the result will be a positive value for A. Now if B chooses B3 in the hope that A chooses A1, ताकि उसको -2 पॉइंट मिले, लेकिन B जो है B3 चूज़ करेगा तो A will choose A2, क्योंकि उसमें उसको 3 पॉइंट्स का फ़ायदा है. तो अब B की स्ट्रैटेजी क्या होगी? B की स्ट्रैटेजी होती है मिनी मैक्स. B प्लेज मिनी मैक्स स्ट्रैटेजी. मिनी मैक्स का मतलब है कि वो मैक्सिमम वैल्यूज़, वो चाहता है कि A का फ़ायदा कम से कम हो. तो वो किस तरह से होगा कि जो भी मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं, यानी A को जो मैक्सिमम फ़ायदा हो सकता है उस फ़ायदे को वो कम से कम करना चाहता है. तो मैक्सिमम वैल्यूज़ को वो मिनिमम रखना चाहेगा. तो वो हर स्ट्रैटेजी की मैक्सिमम वैल्यूज़ लेगा, हर स्ट्रैटेजी की. यानी अगर वो B चूज़ करता है तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आएगी? 12. अगर B2 चूज़ करता है तो मैक्सिमम वैल्यू इज़ 7. अगर B3 चूज़ करता है तो मैक्सिमम वैल्यू इज़ 3. आउट ऑफ दीज 3 मैक्सिमम वैल्यूज़ द मिनिमम वैल्यू इज़ 3, राइट. तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं हम कॉलम मैक्सिमा.
नाउ सी इट अगेन, दोबारा देखिए कि हमने क्या किया है। हमारे पास एक गेम था, उसमें ये पे ऑफ्स दे रखे थे। यहाँ पर हम रो की मिनिमम वैल्यूज़ लिखते हैं, हर रो में मिनिमम वैल्यूज़ लिखेंगे। इन एवरी रो the minimum value is in this particular row the minimum value is -8. In second row minimum value is 3. In third row minimum value is -10, right? और जो मिनिमम वैल्यूज़ होती हैं उसका मैक्सिमम लेंगे। चूज़ कर लिया हमने 3, राइट। फिर हमने सेकेंड स्टेप क्या किया है, हमने कॉलम मैक्सिमा निकाला है। कॉलम मैक्सिमा मीन्स कि हर कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू हमने यहाँ नीचे लिखी है। हर कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू, लाइक फर्स्ट कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू है 12, सेकंड कॉलम की है 7 और थर्ड कॉलम की है 3। इन मैक्सिमम वैल्यू में से जो मिनिमम वैल्यू है उसको हमने सर्कल किया है 3, राइट। तो अब ये देखिए कि ये जो 3 है ये कॉमन आ गया है। दिस 3 इज़ द कॉमन पॉइंट that both the strategies are choosing. This point is called saddle point. ये एक तरह का इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो दोनों ही प्लेयर्स को सूट करती है ये स्ट्रैटेजी, यानी A will choose A2 and B will choose B3 and the payoff will be 3. So the optimal strategy, best strategy नहीं होती है ये होती है ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी। बेस्ट तो क्या है कि A1 चूज़ करे और B1 चूज़ कर ले, A के लिए बेस्ट वो है, राइट। लेकिन B के लिए बेस्ट कुछ और है। B के लिए बेस्ट ये है कि B1 चूज़ करे और A3 चूज़ करे, पर ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो दोनों जो है एक ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी पे अराइव करते हैं, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अराइव करते हैं और उसको हम सैडल पॉइंट कहते हैं। और सैडल पॉइंट इस तरीके से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, हर रो का मिनिमम और उन मिनिमम वैल्यूज़ का जो मैक्सिमम है वो, हर कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यूज़ यहाँ लिखेंगे और कॉलम की जो मिनिमम वैल्यू है वो, इफ़ दे आर सेम, इस केस में सेम है तो इसका मतलब है सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है इस क्वेश्चन में। सैडल पॉइंट एग्जिस्ट एंड दिस इज़ योर ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी। तो ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या है, ए की है A2 और B की है B3। दिस इज़ योर ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी एंड वैल्यू ऑफ गेम इज़ 3। दिस वैल्यू इज़ वैल्यू ऑफ गेम। अब +3 आया है। +3 का मतलब है कि A को 3 पॉइंट्स का फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट ऑफ 3 पॉइंट्स टू A एंड B इज़ लूजिंग बाय 3, राइट। तो सबसे पहले जब भी हमें कोई गेम का मैट्रिक्स दिया होता है तो हम फटाफट से ये कैलकुलेशन करके देखते हैं, रो मिनिमा निकालते हैं, कॉलम मैक्सिमा निकाल के कि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो हमारा आंसर आ गया है और हमारा आंसर ये हो गया, ये हमारी ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी आ गई और ये वैल्यू ऑफ गेम आ गया। लेकिन अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता तो गेम कैसे सॉल्व करेंगे। तो गेम सॉल्व करने के हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। लाइक वन मेथड इज़ 2x2 मैट्रिक्स। दिस इज़ आवर सेकेंड मेथड। पहला मेथड हो गया हमारा सैडल पॉइंट, दिस इज़ आवर सेकेंड मेथड 2x2 मैट्रिक्स, यानी कि हमारी मैट्रिक्स जो है 2x2 के साइज़ में होगी। A के पास A1 और A2 स्ट्रैटेजी होंगी, B के पास B1 और B2, सिर्फ दो ही। 2x2 मैट्रिक्स A will have only 2 strategies, B will also have only 2 strategies। तो सेकेंड मेथड है 2x2 मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा तो उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर 2x2 की फॉर्म में नहीं है तो हम उसको डोमिनेंस रूल अप्लाई करके 2x2 के मैट्रिक्स में रिड्यूस कर देंगे। 3x3 में साइज़ में हो सकता है, 4x एनी साइज कैन बी देयर, उसको हम रिड्यूस करके 2x2 में ले आएंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट। एंड देयर इज़ फोर्थ मेथड विच इज़ ग्राफिकल मेथड।
ये तीनों मेथड्स क्या हैं वो हमारी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। अभी आप सैडल पॉइंट को अच्छे से समझें और एक क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे, मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ये आपको क्वेश्चन दिया है, इसको आप, इसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है और आपको फाइंड आउट करना है कि ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या है और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द गेम। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है गेम को समझने में, जो इस वीडियो में कराया है उसको समझने में, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।